बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum dear students. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. In our previous video, we solved exercise number 4.1 to 4.7. Now today we will solve exercise number 4.7 to 4.10 of chapter number 4, week number 6. In exercise number 4.7, we apply these formulas. In question number 1, find the value of a square plus b square when a plus b is given is equal to 5 and ab is equal to 4. Then you have to find a square plus b square. So in this formula, which formula we will use to find the value of a square plus b square? You will check the data and the find which values are given to you. यहाँ पर आपने क्या देखना है कि कौन से डेटे में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। अकॉर्डिंग टू आपने क्या करना है, उस वैल्यूज़ को फार्मूले के मुताबिक देखना है। अब देखें a प्लस बी, इनमें से कौन सा एक ऐसा फार्मूला है जिसमें a प्लस बी भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा है। एंड ऑल दीज थ्री टर्म्स आर इन विच फार्मूला वी हैव। तो देखें a प्लस बी, ए प्लस बी, ए बी, क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट फार्मूला we will apply the first formula, a plus b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Here write a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now putting values यहाँ पे, what is the value of a plus b? The value of a plus b is equal to 5. So put 5 here. Square is equal to a square plus 2. What is the value of ab? The value of ab is 4. Now put here 4 plus b square. 5 का square 25 is equal to a square plus 2 4s are 8 plus b square. Here we are finding the value of a square plus b square. So now shift plus 8 to the left hand side. The sign will become a minus. Minus 8 is equal to a square plus b square. The answer we get, here 25 minus 8, 17 is the answer of a square plus b square. अब आप ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ फाइंड करनी है वो तीनों में सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन डेटा चेक किया करें कि डेटा में क्या गिवन है, उसके मुताबिक आपने फार्मूला यूज़ करना होगा। अब इसमें देखें ए माइनस बी, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म, 3 एक्सप्रेशन है, ए माइनस बी, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी। विच फार्मूला दीज बोथ टर्म्स आर included? So here a minus b, where is a minus b? In second formula we have a minus b, ab, and which I actually find a square plus b square.
So in question number 1 part 2 we will use the second formula a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. So here we write the formula a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Now putting values, a minus b minus 6 whole square, a square, write a square minus 2. What is the value of ab? The value of ab is equal to 3. Now put here the value of 3 plus b square minus 6 square plus 36, a square minus 2 3s are 6 plus b square minus 6 become a positive by shifting from right to left. 36 plus 6 is equal to a square plus b square, and adding these both number finally got our answer 42 is equal to a square plus b square. Now in this formula we find the value of a square plus b square, and here we also find the value of a square plus b square. The data in both questions, in data a plus b and a minus b are differentiate the formula. Now here a plus b, a minus b, a square plus b square, all these three expression, in which formula these three expression are given. You check it, a square plus b square, here a square plus b square, a plus b, a plus b, a minus b, a minus b. You will use that formula in which these both, in this these all terms are given, all expressions are given, which you have to find or not. So write here the formula 2 into a square plus b square, a plus b ka whole square plus a minus b whole square. Now putting the values, write 2 a square plus b square. What is the value of a plus b? The value of a plus b is equal to 5. Now put here 5. What is the value of a minus b? In data we have the value minus 9 whole square. 2 into a square plus b square, right? 5 square 25 plus minus 9 square 81. Now add both values, 6 1 106. Actually we find the value of a square plus b square. So here 2 is multiplied with a square plus b square. We will shift this 2 to the right hand side. Here 2 is multiplied. When we shifting this 2 to right hand side, it will be divided by 106. So a square plus b square 106 over 2. 2 5s are 10, 2 3s are 6. The answer we have 53. A square plus b square. The value of a square plus b square is equal to 53. यानी कि आपने इसमें क्या किया, पहले जब आप क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए प्लस बी वैल्यू गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है. जब आप फाइंड और डेटा इन तीनों को आपने इधर चेक करना है कि ये कौन से फार्मूले में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं. तो हमने फार्मूला नंबर 3 में देखा, आप देखें 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि ए प्लस बी तो गिवन है, ठीक है गिवन है, ए बी नहीं गिवन, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगा. इसमें भी ए बी नहीं गिवन. ये और ये दोनों ऐसे फार्मूले हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आपको 4a भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा. ठीक है, तो इसमें और इसमें फ़र्क याद रखें. जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने पहले फार्मूले माइंड में लेकर आने कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा. ए प्लस बी है तो ए फर्स्ट वाला लग रहा है, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कौन कौन से पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 जो है वो आपने
होमवर्क से करना है 4 जो है वो सेम एज 3 है, सेम एज थर्ड पार्ट। कौन सा कर लेंगे? 4 किस तरीके से कीजिएगा? तीसरे पार्ट की तरह 2 1 डेटा। क्वेश्चन नंबर 2, a plus b is equal to 9. And a minus b is equal to minus 5. Find the value of 4ab. It is a very easy question because in find which value we have to find the value of 4ab. So by using 4ab formula we will find the value of 4ab. अब देखें क्या क्या गिवन है, a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, क्या फाइंड करना है? 4ab। तो ये तीनों चीज़ें सिर्फ एक ही फार्मूले में आ रही हैं, वो कौन सा फार्मूला है? 4ab का फार्मूला। तो आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? 4ab। यूजिंग 4ab फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है? माइनस का है। तो याद करने में आपको आसानी होगी। पुटिंग द वैल्यूज़, putting the values 4ab, a plus b 9, a minus b minus 5, 4ab 9 square 81 minus यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले 5। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द पावर ऑफ माइनस 5, माइनस 5 की पावर 25, पॉजिटिव 25। 4ab is equal to 56 here. Now the value of 4ab is 56. How can we find the value of 4ab? By using 4ab formula we will find the value of 4ab, putting all the values which are given in the data. So here, if in question the examiner asks you what is the value of ab, if a plus b is equal to 9 and a minus b is equal to minus 5, how can we find the value of ab? The answer is that we can find the value with the help of 4ab formula. After finding the 4ab value, you will shift 4 from here to the right hand side. How? AB is equal to 56 over 4. Now dividing 4 1 the 4, 4 4 the 16. So AB is equal to 14. Here we also can be find AB value with the help of 4AB formula. And if the examiner asks you what is the value of a minus b, if a plus b is given and ab is given, let's see. Now in homework question you will complete question number 2 part 2 same as part 1. Let's suppose question number 4, if the value of x plus y is equal to minus 9 and xy is equal to 20, find the value of x minus y. Which formula we will use to find the value of x minus y? So here we will check all these values in those formula where these all value come. Here x plus y, a plus b, xy, xy, x minus y, here x minus y. So we will also use 4ab formula to find the value of x minus y. Here we write formula 4ab is equal to a plus b whole square minus a minus b whole square, or
you will write the given alphabet instead of A and B. For A, what is A here? The A is X, B is Y. Yani the given alphabet, putting given alphabet according to the formula. A, X plus Y whole square, X minus Y whole square. Now putting the of X minus Y, so we will shift X minus Y whole square to the left hand side. So it will become positive X minus Y whole square plus 4xy is equal to X plus Y whole square. Which expression we will find? The X minus Y we will find. So here we shift X plus 4xy to the right hand side. So the plus sign become a minus sign. Here we putting values. X minus Y remains same. What is the value of X plus Y? The value of X plus Y is minus 9 whole square. 4xy. What is the value of xy? Is 20. X minus Y whole square. What is the square of minus 9? The square of minus 9 is 81. Minus 4 to the 8, 20. 24 the 80. X minus Y whole square. 81 minus 80 become 1. So here we find the value of X minus Y, not whole square. So we will cancel here the square. What will we do? We will taking under root on both sides to cancelling the square from the X minus Y. Taking under root on both sides. Here under root X minus Y whole square is equal to under root 1. So square and the root cancel. What is the answer of under root 1? The answer is plus minus 1. देखें इसको अब जरा समझें कि अगर आपको गिवन हो x प्लस वाई और x माइनस वाई, कौन सा फार्मूला आप यूज़ करोगे? फार्मूला ए बी 4ab वाला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखें ए बी एक्स वाई, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, फार्मूला ये यूज़ किया. इस फार्मूले को जो गिवन वैल्यूज़ यानी गिवन अल्फ़ाबेट है उसके मुताबिक आप पुट कर देंगे. सो अल्फ़ाबेट ए बिकम एक्स एंड बी बिकम वाई, पुट कर दें. ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी की जगह एक्स माइनस वाई. वैल्यूज़ आपने यानी अल्फ़ाबेट के मुताबिक आपने पुट कर दी. ठीक, क्या फाइंड करना है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. यहाँ माइनस में, यहाँ जब शिफ्ट करेंगे तो साइन प्लस में चेंज हो जाएगी. अगले स्टेप में प्लस का 4x को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस. यहाँ पर आप उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? -9 वो पुट की. एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 20 वो पुट की. दोनों को मल्टीप्लाई किया. इस दोनों का इस नंबर का क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर फाइंड करेंगे. आंसर क्या आएगा? माइनस करने के बाद 1. स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लेना पड़ता है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा. एक्स माइनस वाई जो भी रूट में नंबर आएगा यानी उसका अगर आप रूट फाइंड करोगे तो उसका आंसर किस में लिखना पड़ेगा? प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा. इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4(1) है उसका इसी तरह आप कौन सा पार्ट कर लेंगे होमवर्क से? पार्ट 2 मुकम्मल करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, लेट सपोज आपको एक वैल्यू गिवन है. द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5. द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Write the heading solution. 8ab a square plus b square. We divided 8ab into a square plus b square into two parts.
First is 4ab and multiply by 2 into a square plus b square. 8ab divided 8ab into a square plus b square is divided into two parts. इस तरीके से डिवाइड करें कि वो दोनों भी फार्मूले की फॉर्म हो, यानी किसी वैल्यू का फार्मूले बन रहे हैं. You also know that 4ab is a plus b square minus a minus b square. So first 8ab into a square plus b square की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले आप किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, 4ab की. फिर किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को. इसकी वैल्यू किससे फाइंड कर लोगे, फार्मूले से फाइंड कर लोगे. इसकी वैल्यू किससे फाइंड कर लोगे, फार्मूले से फाइंड कर लोगे. जब दोनों की वैल्यू का आंसर आ जाएगा उनको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, या जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस तरह से पार्ट 2 भी इसका इसी तरीके से आपने मुकम्मल कर लेना. 9 क्वेश्चन नंबर 5. Five one. If we have the value of x plus 1 over x is equal to 3 plus under root 2. Find the value of x square plus 1 over x square. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक्सरसाइज नंबर 2.8 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की हेल्प ले सकते हैं. जिस तरीके से वो वाले क्वेश्चन करवाए हैं उसी तरीके से आप इसे फुलफिल करेंगे. किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, 2 और 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.8. कैसे कर, बस राइट द वैल्यू x plus 1 over x. Write the expression x plus 1 over x is equal to 3 plus under root 2. You will find the value of x square plus 1 over square. What will we do? We will taking square on both sides. So here x plus 1 over x whole square is equal to 3 plus under root 2 whole square. Here we see that here the formula become a plus b whole square. So write here the formula of a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. यहाँ देखें जब दो वैल्यू प्लस हो रही हो या दो वैल्यू माइनस हो रही हो और उसका स्क्वायर फाइंड करना तो वो फार्मूला बन जाता है कि उसका देख लें a प्लस, यहाँ पर बीच में साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो आप प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला आप यूज़ करोगे, ये वाला. अभी यहाँ पे ये वाला क्योंकि दो वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे. स्क्वायर ही क्यों लगा है, क्योंकि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वहाँ कौन सी पावर आ रही है, 2, इसलिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. अगर क्यूब होगा तो क्यूब करना पड़ेगा, ये याद रखिए. So here we will put above expression into according to the formula. फार्मूले के मुताबिक इसको पुट करें, यानी it means open this expression according to this one. A square, what is a here? A is x square. 2 a is x. B is 1 over x plus 1 over x whole square is equal to, here also open our formula a plus b whole square. So here a is 3 square plus 2a is 3, b is under root 2 plus b square, b under root 2 whole square. So x square, x cancel, 2 ones are 2, 1 square 1, x square is x square, whole square है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों पर आएंगे. 3 का स्क्वायर 9, 2 3 is 6, 6 under root 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 plus 2, shift to the right hand side. So x square plus 1 over x square is equal to 9 plus 6 under root 2 plus 2
here plus 2 become a minus 2, plus 2 minus 2 cancel, x square plus 1 over x square is equal to 9 plus 6 under root 2. Here is the answer of x square plus 1 over x square. In question number 5, our question is 2 and 4. अब ज़रा समझें, अगर डेटा में x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू गिवन और क्या कहे आपको मालूम करने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डेटा है, डेटा में गिवन है, उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। क्या मालूम, देखें जो मालूम करना उसमें कौन सी पावर आ रही है, 2 पावर आ रही है, इसलिए आप क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ पावर 3 लिखी हुई है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। किसको, इसको, ये एक्सप्रेशन कहाँ से मिलेगी, डेटा से मिलेगी। जब आपने स्क्वायरिंग किया तो देखा है कि यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है, a फर्स्ट वैल्यू को a, सेकंड वैल्यू को b का नाम दें तो बना a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख देंगे, ये फार्मूला लिखा, फिर इस एक्सप्रेशन यानी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे फार्मूले के मुताबिक। फार्मूले में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर, a क्या है x, तो a की जगह x और उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, प्लस लिखा, 2 कॉपी किया, a की जगह क्या है x पुट कर दिया, b की जगह क्या है 1 ओवर x पुट कर दिया, फार्मूले का प्लस साइन लगाएंगे, b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x पुट किया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा के इक्वल, ये देखिए इक्वल, यहाँ भी देखिए यही फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको भी इसके मुताबिक ओपन कर देंगे। फिर अगले स्टेप में देखें x से x कैंसिल होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 अंडर रूट 2। ये इससे ना मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये रूट में लिखा हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 एज इट इज़, प्लस का 2 इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस का 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9 प्लस 6 अंडर रूट 2 आ। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये कहा ये फाइंड करें, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ इस तरीके से कि 2.8 में भी कि ये फाइंड करने के लिए किसका मालूम होना ज़रूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का। तो सबसे ये फाइंड करने के लिए पहले ये मालूम करेंगे, जब ये मालूम हो जाएगा देन अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ये फाइंड करने के लिए पहले ये निकालना है, और ये किसकी मदद से निकलता है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की मदद से निकलता है। तो जब ये करें तो कोशिश करें पहले इसको भी ज़रा इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान लगेगा। आप इस तरीके से हमारे पास 4.7 कंप्लीट हो गई है। यानी आज की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इन 1 2 4 एक्सरसाइज से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आता है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.8 इन विच दिस 2 फार्मूला आर यूज्ड। इन 4 एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे हम, 4.8। इन 4.8 क्वेश्चन नंबर 1, इन 4.8 क्वेश्चन नंबर 1, expand the following. What we'll do here, we will expand the following. Question number 1, part 4, 1 over 2a minus 2 over 3b plus 3 over 4 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करना है। अब आप देखें कि ब्रैकेट में कितनी वैल्यू, 1 2 3, 3 वैल्यू के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। 3 वैल्यूज़ पर अगर होल स्क्वायर आए तो वहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसका एक फार्मूला है जो आपने लिखना है, उसी के मुताबिक इसको एक्सपेंड करें। देखें इन 4.8 2 फार्मूला आर गिवन। First one is when we will use this formula, if the question is expand the following, then we will use this one, and if in question we will find the value of any data and if anything, then we will use this one to find the value of। ये वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला है अगर क्वेश्चन में वैल्यू मालूम करने को कहा जाए, और ये जो है वो एक्सपेंड, अगर क्वेश्चन में
एक्सपेंड कहा है, एक्सपेंड करें तो ये वाला फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लफ्ज़ एक्सपेंड लिखा है, लिहाजा इस पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नाउ the question, we will make the question according to the a plus b plus c whole square. First of all we will check also. Here it is a minus sign, in formula here it is a plus sign. So first of all we will make the given question according to the formula form. Here equal a 1/2a, put the plus sign according to the formula, plus what is b? B is -2, so we write the value of b in a bracket form, plus c, write the value of c here, and write down the bracket, open and close curly bracket, whole square. So here the value of a is 1/2a, the value of b is -2/3b, the value of c is 3/4. So a plus b plus c whole square. Here we will open this one according to the given formula. यानी सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को इसके मुताबिक अरेंज करेंगे। ये देखें a प्लस b, अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस c 3/4 और ये होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसको इसके मुताबिक यानी इस वैल्यू को भी आप किसके मुताबिक ओपन करेंगे, ये ओपन फॉर्म है फार्मूले की। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर में व्हाट इज ए इज 1/2a होल स्क्वायर प्लस b, द वैल्यू ऑफ b इज -2/3b प्लस c, द c इज 3/4 एंड राइट अ स्क्वायर प्लस 2a, the value of a is 1/2a, b, the value of b is -2/3 into b plus 2bc, 2 formula का 2, what is the value of b? b is -2/3b, what is c? The value of c is 3/4 plus 2ca, 2ca, c का वैल्यू 3/4, a, the value of a is 1/2a. Write down the bracket, bracket भी लगाए। Here 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 and also a स्क्वायर तीनों पर है 1 2a, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस, अगर ब्रैकेट में माइनस साइन हो और पावर इवन हो तो माइनस बिकम पॉजिटिव, पावर इवन होने की वजह से माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2/3ab, 2/3ab प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 से 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ऑल नंबर्स आर कैंसिल एक्सेप्ट अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कौन सा रहेगा? बी। राइट डाउन द बी प्लस 2 2 कैंसिल, 3/4a, 3/4a। Here is the answer. We expand this term according to the given formula. एक्सपेंड को आपने ओपन कर लेना है। एक्सपेंड का मतलब फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके कंटेंट सोल्यूशन में जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हुए हैं वहाँ से आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने करना है। और क्वेश्चन उतारा, फार्मूला उतारा, फिर इसको फार्मूले के मुताबिक अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद ओपन करना है, पहले ओपन नहीं करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 in which we find the value, we will use the second one formula in question number 2 to find the value of question number 2 data.
Question number 2, 1. P plus Q plus R is equal to under root 7. PQ plus QR plus RP is equal to 2. Find the value of P square plus Q square plus R square. So solution. What will we do here? We will find the value of P square plus Q square plus R square. We will take this value P plus Q plus R and taking square on both sides. So that above expression become a whole square and under root 7 whole square. Square से root cancel. Here the formula is will be applied P plus Q plus R. Which formula? That one. This one formula we will use here. A plus B plus C whole square is equal to A square plus A plus B plus C whole square is equal to A square plus B square plus C square plus 2 into AB plus BC plus CA. Now we will put this alphabet according to this formula. Here A is P, B is Q, C is R. A is P, B is Q, C is R. So A is P, B is Q, C R whole square. A is P square, B Q and square, C is R and square plus 2 into AB PQ, BC QR plus CA RP. सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले को फिर ओपन करेंगे, जो गिवन अल्फ़ाबेट है वो ए और बी और सी की जगह लिख देंगे, फिर देखें किस किस की वैल्यू है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज किसकी वैल्यूज गिवन है। देखें पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 पुट कर दें, इसके ऊपर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देख लें ये वाली वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, एज इट इज उतारनी 2, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 2 गिवन, सो राइट हियर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 to the 4, so shift plus 4 into a left hand side, so it become a minus 4, so p square plus q square plus r square, so 7 minus 4, the result is 3, p square plus q square plus r square. So here we will find the value of p square plus q square plus r square by using this formula. So homework question देख लीजिए, 2 करेंगे 3 करेंगे, वो तो सेम इसी पैटर्न पर होंगे, एक होगा 5 और एक होगा 6, 4 5 6 1 2 3 में से 1 मैंने करवा दिया, 4 5 6 में सेम पैटर्न है, लेकिन उसमें आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसकी, ये गिवन होगा, उसमें ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये फाइंड करना है। वो वर्किंग आप कंटेंट सोल्यूशन में देख लीजिएगा, काम यही है, फार्मूला भी यही है, उससे सेम स्टेप है, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप खुद से कर लेंगे। बस ये याद रखिएगा, डेटा में 3 अल्फ़ाबेट हैं, इससे पीछे वाली एक्सरसाइजेस में कितने अल्फ़ाबेट थे, 2 अल्फ़ाबेट, 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो तीनों पर होल स्क्वायर करोगे, तो होल स्क्वायर जब करोगे तो फार्मूला ओपन होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये एक्सरसाइज नंबर 4.8 भी कंप्लीट हो गई है, इसे कंप्लीट कर लीजिए। यस क्लास, अब हम जो है वो 4.9 को डिस्कस करेंगे। 4.9 में जो फार्मूले यूज़ होंगे वो ये लिखे हैं। वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.9 इन विच दिस फार्मूलाज आर वी विल यूज़। ये जो 2 फार्मूले लिखे हुए, ये क्यूब, जब फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब मालूम करने को कहा जाएगा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर वैल्यूज़ मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो ये वाले फार्मूले आप यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 5, इसमें लिखा फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग।
अब इसका आपने क्यूब मालूम करना है, तो क्यूब मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखा 3x माइनस 1/3y एज इट इज़ कॉपी किया। क्यूब मालूम करने के लिए यहाँ लिखेंगे टेकिंग होल क्यूब, सो राइट होल क्यूब 3x minus 1/3y whole cube. So here the first value a which is 3x, the second value is b which is 1/3y. So a minus b whole cube. So we will use second one, a minus b whole cube formula. A minus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So we will put the value of a and b in a given formula. So here equal a, what is the value of a? 3x whole cube minus 3a, the value of a is 3x and whole square. What is the value of b? The value of b is 1/3y plus 3a, the value of a is 3x. b, what the value of b is 1/3y and whole square minus b cube 1/3y whole cube, ये लिख देंगे। यानी गिवन वैल्यूज को गिवन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ओपन कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है जी, 3 क्यूब यानी 27x क्यूब माइनस 3, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर 1/3y प्लस 3x 1 का स्क्वायर 1, 3y 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 1/1 का क्यूब 1, 3y का क्यूब क्या होगा 27y क्यूब। लिखा जी आपने 27x क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल 9x स्क्वायर अपॉन y, 3 से 3 कैंसिल 9x स्क्वायर 1 ज़ा 9x स्क्वायर अपॉन y प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ से भी कैंसिल कर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो x 1 ज़ा x अपॉन y स्क्वायर माइनस 1/27 y क्यूब। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स करने जो कंटेंट के सॉल्यूशन में होमवर्क में दिए गए वो आपने मुकम्मल करने हैं। क्वेश्चन लिखकर होल क्यूब, अगर प्लस होगा तो प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस होगा तो माइनस का फार्मूला आप ओपन करेंगे। फिर इसके नीचे ये ज़रूर लिखा करें ए एंड बी, ताकि जब मैं आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने लगे तो आपके लिए आसानी हो, तो पता हो कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू आपने क्या सपोज की है। जब आप वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया जी 4.9 की। 4.9 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 के 1 में आपको वी हैव द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 and the value of xy is equal to 8. Find the value of x cube plus y cube. ठीक है, अब आपके पास वैल्यू वाला क्वेश्चन है तो वैल्यू वाले फार्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा फार्मूला यूज करना है वो देख लें। आपको डेटा में जो गिवन है x प्लस वाई उसको यहाँ लिखेंगे और क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्यूब आने की वजह से आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर नहीं करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इससे पिछली 4.7 में हमने ये चीज़ देखी थी, वहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर किया था, अब क्यूब है तो क्यूब करेंगे। तो यहाँ क्यूब लिखें एक्स प्लस वाई होल क्यूब -5 होल क्यूब। सो हियर वी राइट द फार्मूला ऑफ
a plus b whole cube. A plus b whole cube formula. Right formula, a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. फार्मूला लिखने के बाद इसको अल्फ़ाबेट के यानी ए बी की जगह आपने जो अल्फ़ाबेट क्वेश्चन में गिवन है उसे पुट कर देना है. ए क्यूब मीन्स ए क्या है, एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5 का क्यूब -125. ए क्यूब, ए क्या है, एक्स क्यूब, बी क्या है, वाई क्यूब प्लस 3ab 3xy, a plus b x plus y. So here we have the value of xy and x plus y. We have the value of xy and x plus y. So here we put the value of xy and x plus y. X cube plus y cube plus 3xy. The value of xy is 8. The value of x plus y is -5 is equal to -125. X cube plus y cube, here we multiply, 8 5 is 40, 43 is 120, plus minus minus. Here we shift -120 to the right hand side, so -20 become a +120. So here we subtract both values, we get answer -5. -5 क्यों है, जब बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो सिंबल होती है वही आंसर में आएगी. सो फाइनली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. अगर डेटा में यूँ लिखा होता x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई और ये एक्स वाई, और यहाँ फाइंड करने के लिए आता x माइनस वाई ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई ओवर क्यूब, तो यह ये माइनस होना और ये माइनस, तो ये कौन से फार्मूले में आएगा, माइनस के फार्मूले. तो फिर आपने ये वाला फार्मूला भी यूज़ करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्लस के फार्मूले भी यूज़ होंगे, कहीं कहीं माइनस के भी फार्मूले यूज़ होंगे. तो आपने डेटा में देखना है और फाइंड में देखना है. ये दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव का फार्मूला आपने यूज़ किया, ये देखें दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव का आप फार्मूला यूज़ करें. वर्किंग उसी तरीके से आपने करनी है. इसी तरीके से इसके आपने समझ लें होमवर्क में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 और 7. 1 देख लिया, 3 में माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, 5 और 7 की सही हिंट दे देता हूँ, आप ज़रा समझ लीजिएगा हिंट क्या है उसकी. क्वेश्चन नंबर 2 5 डेटा, डेटा में वैल्यू गिवन है x minus 1 over x is equal to 4. You have to find the value of x cube minus 1 over x cube. सिर्फ आपको एक वैल्यू गिवन है और आपको किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब की. क्यूब आ जाने की वजह से आपने क्या करना है, इसको यहाँ लिखना है सोल्यूशन के बाद और टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेना है. जब आप क्यूब कर लेंगे तो यू फाइनली गोट द आंसर ऑफ एक्स क्यूब एंड माइनस 1 ओवर. यू विल गेट द आंसर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब बाय यूजिंग द फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. By using this formula we will get the answer of x, we will find the value of x cube minus 1 over x cube. So part 7 is all same as question number 2 5. 2 part 5 है जी, ठीक है जी, ये मुकम्मल हो गया. इस तरीके से एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपने मुकम्मल करने हैं. कंटेंट के सोल्यूशन में इसकी वर्किंग दी हुई है, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, इसको करने की कोशिश करें, फिर आपने वो काम करना. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कंडीशन है इफ x माइनस वाई 2 अंडर रूट 2 देन प्रूव दैट
क्या प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6√2xy 16√2, ये प्रूफ करना है, ये कंडीशन. इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2√2, then prove that x cube minus y cube minus 6√2xy is equal to 16√2. So write down the heading solution and write the condition x minus y 2√2. Here we see that check कि x cube y cube लिखा हुआ है, तो क्यूब करने के लिए आपने यहाँ डायरेक्ट क्या लिख लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. So x minus y whole cube is equal to 2√2 cube. Here we will use the formula a minus b whole cube. A minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. What is the value of a? The value of a is x, the power is 3, minus b, the value of b is y power 3 minus 3a x b y into a minus b x minus y is equal to 2. The whole cube है, 2 पर भी क्यूब और √2 पर भी क्यूब आ जाए. So write x cube same, y cube minus 3xy. What is the value of x minus y? The value of x minus y is 2√2. 2√2. 2 का क्यूब 8. √2 की पावर क्या है, 3. इट मीन्स के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए पावर 2 चाहिए होती है, तो एक 2 अलग कर लें पावर के साथ, यानी ये √2 का क्यूब का मतलब ये है कि 3 टाइम्स √2 है. स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 3 2s are 6, 3 2s are 6 √2 xy is equal to 8. स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऑन 2√2. राइट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 6 √2 xy is equal to 8 2s are 16 √2. So here hence write hence proof, if the condition is x minus y is equal to 2√2, and we will prove that x cube minus y cube minus 6√2 xy is equal to 16√2 by this process and by using this formula a minus b ka whole cube. So in question number question number 4 same as question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 आप कीजिएगा होमवर्क से. क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क से आप वो 4.7 और 4.9 दोनों के मिलाप से वो एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसको दोनों फार्मूले उसमें यूज होंगे. a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला यूज होगा और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला भी उसमें यूज करेंगे. इस तरीके से 4.9 भी कंप्लीट हो गई है. लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की 4.10 रख लें. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. ये फार्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करोगे 4.10 के अंदर. 4.10 में क्वेश्चन नंबर मैं डायरेक्ट शुरू करवा रहा हूँ जो 7, 8, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के रेफरेंस से. इसी तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में भी आता है. क्वेश्चन नंबर 7 देखें. 7 में इफ वी हैव
the value of L plus M plus N is equal to 15 and LM plus MN plus NL is equal to 74. Find the value of L cube plus M cube plus N cube minus 3LMN, इसकी वैल्यू फाइंड करें। फाइंड से पता चल रहा है कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ये देख लें। L क्यूब A क्यूब प्लस M क्यूब B क्यूब प्लस N क्यूब C क्यूब माइनस 3LMN माइनस 3ABC। तो यहाँ से पता चल गया कि ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली आपने यही फार्मूला अप्लाई कर दिया। लिख देंगे यहाँ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन अल्फ़ाबेट। ये तो फार्मूला लिखा है, जनरल फार्मूला। यहाँ A L क्यूब M क्यूब N क्यूब 3LMN LM प्लस N L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस LM माइनस LM MN और NN, और करके भी लिखें। देखिए आपने अल्फ़ाबेट यानी जो क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे थे उसके मुताबिक आपने लिख लिया फार्मूले को देखते हुए, ठीक है। और करके दोबारा सही कर लें। तो इससे क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, ये एज इट इज उतारें आप। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, LM माइनस माइनस प्लस MN माइनस माइनस प्लस NN, करली ब्रैकेट लगा देंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें कि आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी, क्या आपको 1 2 3 तीनों वैल्यू गिवन है कि नहीं, देखते हैं। L प्लस M प्लस N की वैल्यू गिवन है, यस। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, नहीं। इट मीन्स क्वेश्चन मार्क। ये गिवन है LM प्लस MN प्लस NL, बिल्कुल गिवन है। तो जो दो वैल्यू गिवन है, तीसरी वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो लिहाजा आप ये मालूम अभी नहीं कर सकते। सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, जब ये फाइंड हो जाएगा तब आप ये फाइंड करोगे। तो ये फाइंड करने के लिए यहाँ हेडिंग डालें, फॉर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तीन वैल्यू हैं, तीनों के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो फाइनली जो आपने 4.8 में एक्सरसाइज में जो फार्मूला पढ़ा है वो लिख दें, A प्लस B प्लस C, क्योंकि तीन टर्म हों और उसका स्क्वायर करें तब ये वैल्यू आपको वहाँ मिलेगी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। ये तो फार्मूला लिखा, अल्फ़ाबेट के मुताबिक इसको अरेंज करें। ABC L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2 इंटू LM प्लस MN प्लस NL। यहाँ से आपने क्या कर लेना है, अब वैल्यूज पुटिंग करेंगे। देखें पुटिंग वैल्यूज, इसकी वैल्यू क्या है, देखें 15 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है मालूम करनी है, एज इट इज उतारना। सेम काम है जो 4.8 में किया है, 2 लिखा, इसकी वैल्यू क्या है 74। 225 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 148, प्लस के इधर भेज दें माइनस हो जाए। तो आंसर आएगा 77। जब इसका आंसर आ जाएगा, इसके आंसर को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। यहाँ जब 77 रखेंगे, माइनस करेंगे किसको, इसकी वैल्यू क्या है 74। 77 में से 74 जाएगा 3, और इसकी वैल्यू क्या है 15 3 जा 45, आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक मुकम्मल करना है। अंडरस्टैंड क्लास? ये आप हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7, 8, 9। अच्छा, और हिंट दे दूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक है उसकी हिंट ले लें, समझ लें उसको भी। अच्छा, किसी क्वेश्चन में मे बी 9 में हो सकता है कि ये मालूम करने को कहा जाए ये दिया गया होगा, तो फिर उसी तरीके से आप वो फाइंड कर लोगे। और अगर क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट A B C है, फिर ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे। ये तो 2 स्टेप हैं, ये तो इसके मुताबिक आपने एक स्टेप ज़रूर करना है कि माइनस कॉमन लेना ज़रूरी है। में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। A³ माइनस B³, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव का भी ले लें आप। यानी आपने क्या करना होगा, इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, इसको इसमें क्लोज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, 3 में भी यही है, 3 और 4 में, लेकिन उसमें डबल ब्रैकेट की बजाय 4 ब्रैकेट लिखी होगी, तो आपने उसका पेयर के साथ उसका पेयर बनाना, यानी इसका पेयर अगली ब्रैकेट होगी उसके साथ उसका पेयर बनाना। कैसे ढूंढेंगे? पहली ब्रैकेट में अगर माइनस है तो दूसरी ब्रैकेट में तमाम साइन पॉजिटिव वाले होने चाहिए। ये चेक, ये ढूंढने का आसान तरीका है। अगर छोटी ब्रैकेट में साइन माइनस के, तो अगली वाली बड़ी ब्रैकेट में जहाँ 3 वैल्यूज लिखी हैं उसमें तीनों के साइन क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। अगर फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है तो ए बी किस में होना चाहिए? माइनस में। ये देखिए, सिर्फ ए बी को याद रखेंगे। अगर फर्स्ट में माइनस है तो ए बी को ढूंढे, अगर ए बी पॉजिटिव है तो ये इसके साथ पेयर बनेगा, अगर ए बी प्लस है तो ए बी माइनस वाला ढूंढे उसके साथ इसका पेयर बने। काम उसी तरीके से करेंगे 3, 4 में। 5, 6 में क्या करना है? प्रूफ के सवाल है, उसमें ये वाला फार्मूला जो अभी लिखवाया था ना, A³ प्लस B³ प्लस C³, यानी 5 और 6 में, उसमें इस फॉर्म में दिया होगा। A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3AB। इस फॉर्म में, इसमें दिया हुआ है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास 5 और 6 में। इस तरीके से चैप्टर 4 मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में एक बात बता दूं, चैप्टर नंबर 12 लॉन्ग थ्योरम, इस चैप्टर के बाद आपने लॉन्ग थ्योरम का काम करना है। लॉन्ग थ्योरम हेडिंग डालिएगा लॉन्ग थ्योरम की। थ्योरम नंबर आपने 7 करना है, थ्योरम नंबर 8 करना है और 10 करना है। पेज नंबर, बुक के पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पे है ये। थ्री 10 एंड 3 11, 3 12, 3 1 3, 3 15, 2 3 16। ये यानी जो स्टेटमेंट होगी थ्योरम की ब्लैक पेन से लिखना है। और कहाँ तक कॉपी करना पड़ेगा? 311 पर, जहाँ पर Q.E.D कॉर्ड रे डेमोस्ट्रेटम लिखा होगा, वहाँ तक एज इट इज़ कॉपी करना है। जो डायग्राम होगी पेंसिल से बनानी है। जो प्रूफ में, यानी जो ब्लैक पेन से जो स्टेटमेंट लिखी होगी थ्योरम 7 लिख के स्टेटमेंट, इफ से लेकर वहाँ कॉन्ग्रेंट तक, उसके बाद गिवन हेडिंग होगी। ये सारा काम ब्लैक से करना है, बाकी सारा ये जो हेडिंग है वो मार्कर या ब्लैक मैक्स पेन से आप कॉपी कीजिएगा। जहाँ डायग्राम होगी, डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे। उसके बाद प्रूफ के अंदर 2 बातें होंगी, एक स्टेटमेंट और एक रीज़न। ये 2 कॉलम बनेंगे। स्टेटमेंट और रीज़न के कॉलम के बाद आखिर में आके जहाँ QED आ रहा होगा वहाँ तक एक थ्योरम 7 कंप्लीट होगा। थ्योरम 8 भी इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे, थ्योरम 10 भी इसी तरीके से आप मुकम्मल करेंगे। तो इस तरह हमारे पास चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया, थ्योरम का काम भी आपको दे दिया। होपफुल आप इसको कंप्लीट कीजिएगा फेयर कॉपी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे 6.2 एक्सरसाइज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, कॉपीज़, एक और बात आपको बताता चलूँ कि सितंबर के फर्स्ट वीक में कॉपीज़ कलेक्शन होगी, यानी कॉपीज़ चेक होंगी। आप स्कूल भिजवा दीजिएगा, कॉपीज़ वगैरह चेक होंगी आपकी, ठीक।
15 सितंबर के बाद जब ओपन होंगे स्कूल, जब आप आएंगे उसके बाद जो है पेपर का जो है वो स्केड्यूल आपको मिल जाएगा कि कौन सा पेपर होगा, किस डेट पर होगा। यानी स्कूल ओपन के बाद पेपर का कॉन्सेप्ट या माइंड में बिठा लें, अभी से तैयारी करते रहें। जो काम आपको दिया जा रहा है साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें, कंप्लीट भी करें फेयर कॉपी पे, और इंडेक्स भी मेंटेन करें अपना, ठीक है। तो होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।